वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सभी? सो आफ्टर द 2 days holidays and no, not yet 2 days. So welcome to the psychology classroom, children. Okay, so I think yesterday only we have read each and everything. So today is 7. Okay, so firstly we should write down the date. I hope the board is properly visible to you all, and the date is also. So date is 7/10/21. Class 11C. Subject psychology. Okay, I hope the informations are very clear to you all. So children, we should focus on the topic which we are studying. जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हमें उस पर फोकस करना चाहिए. What is the topic which we are studying? So we are studying the chapter 5. I should write down over here. Okay, so sorry, we have completed the chapter 4 and we have to start the chapter 5. हमें chapter 5 start करना था. So write down the chapter 5. Chapter 5 and chapter 5 name is sensation, attention and perceptual processes. Sensation, attention and this is a chapter named sensation, attention and perceptual processes. Sensation, attention and perceptual processes. So we have to start a new chapter today, children. We have discussed about the human development. ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द चैप्टर विच गिव यू अ काइंड ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव. एक ये न्यू पर्सपेक्टिव आपको देगा अबाउट द 3 things you will study in this particular chapter, about the sensation, about the attention and about the perceptual process. So 3 चीज़ें आप स्टडी करेंगे इसमें. सेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे, अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे और परसेप्चुअल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे. वेयर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन अबाउट द सेंसेशन. ओके, सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द सेंसेशन. ठीक है, सेंसेशन में हमें क्या डिस्कस करना है? सेंसेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सेंसेशन. सो सेंसेशन इज द इंफॉर्मेशन विच वी कैरीड फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन. जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलती है एंड इट इज़ नोन एज सेंसेशन. हमें क्या होता है? सेंसेशन होता है. The information which we carried from our sense organ, that is known as sensation. So the topic in which you get is knowing the world. This is the thing which you know about it. Knowing the world. Knowing the world. So knowing the world means
हाउ यू विल नो द वर्ल्ड, आप दुनिया को कैसे जानते हो। नोइंग द वर्ल्ड मीन्स आप दुनिया को कैसे जानते हो, आप दुनिया को कैसे समझते हो। सो ऑब्वियसली वी नो द वर्ल्ड बाय द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन। अपने सेंस ऑर्गन से हम जानते हैं। वी सी द थिंग्स, वी hear the things, we touch it, we smell it. So through this we know the world. We touch anything, we get to know that it is hot or it is cold. We smell, we feel. So we know the world by the help of our sense organ. So sense organ play a very important role. And these are the sense organ through which carry the information to the brain and we understand or interpret the things. सेंसेशन में सेंस ऑर्गन के बारे में हमें पढ़ना है। सेंसेशन सेंस से ही बना है। सो देयर आर मेनली 5 सेंस ऑर्गन। ऐसे तो बहुत से सेंस ऑर्गन होते हैं बट मेन जो सेंस ऑर्गन होता है वो 5 होता है। 5 सेंस ऑर्गन। विजुअल सेंसेशन या विजुअल यानी विजुअल सेंस ऑर्गन। द ऑर्गन विच इज इन्वॉल्व इन विजुअल सेंसेशन इज आई। Then is auditory sensation, and the sense organ which is involved in auditory sensation is ear. So visual sensation, auditory sensation, okay. Olfactory, which is related to the smell. Smell यानी which sense organ? Nose. Gustatory, which is related to the taste. Gustatory sense organ which is related to the taste. So the sense organ which involved in this one, it is our tongue. ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ये सारे कुछ सेंस ऑर्गन हैं। सो बेसिकली हमारे कुछ सेंसेशन हैं और बेसिकली हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं वो आई, ईयर, नोज, ठीक है, आई, ईयर, नोज, tongue and skin. Skin is also our sense organ. Skin is also one of the receptor which collect the information. Okay, okay. So we have discussed about the different kind of sense organ and cells. So this is a chapter and this is a topic, sensation. It is related to what is sensation and what are the different kind of sense organ and what are the different kind of sensation. Secondly, how we know the world. हम दुनिया को कैसे जानते हैं. Okay. Then the next point is knowing about the stimulus. Okay. There is one of the branch of psychology which is related to this part and it is known as psychophysics. Psychophysics is a branch of psychology which is concerned with the relationship between psychology and physics. How the psychology is related to the physics. ठीक है, उससे ये रिलेटेड है psychophysics. How it is related to the physics. Here we will discuss about the two concept हम लोग पढ़ते हैं या आप कह सकते हैं 2 kind of threshold. Absolute threshold और लेमन, इसे हम लेमन भी कहते हैं, और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और लेमन. सो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और लिमिट और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और लेमन. ठीक है, आप एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और लेमन बोलो या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या लेमन बोलो. ओके.
चलिए, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है और डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड यानी व्हेन द स्टिमुलस इज ऑफ डिफरेंट नेचर, स्टिमुलस जो है डिफरेंट नेचर के हैं और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। यू शुड राइट इट डाउन ऑल्सो, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंट। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में जस्ट नोटिसेबल डिफरेंट, कुछ ही डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल वन स्टिमुलस इज सॉल्ट, अनदर इज ऑल्सो सॉल्ट, बट दोनों स्टिमुलस सेम है, तो दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जैसे दोनों ही शुगर हैं, दोनों ही सॉल्ट हैं, तो एक कितना ज़्यादा, हाउ मच द क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ शुगर इज और हाउ मच इज लेस इन अदर। So absolute threshold is related to the stimulus is same, similar होते हैं और उनमें क्या noticeable, just noticeable difference क्या होता है। And just opposite to the absolute threshold is the differential threshold where the stimulus are completely different. तो उनमें आप difference find out कर सकते हैं। One is salt and one is sugar. एक salt है और एक sugar है, तो उन दोनों में आप difference find out clearly कर सकते हो। और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस होता है। बोथ द स्टिमुलस आर सेम और उसमें क्या थोड़े से डिफरेंस है, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सो क्लियर, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लेमन, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल लेमन। ठीक है, ये साइकोफिजिक्स एक ब्रांच है जिसका ये पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हैं विजुअल सेंसेशन। सेंसेशन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली आपको टू सेंसेशन को डिटेल में पढ़ना है। वन इज विजुअल एंड अनदर इज ऑडिटरी। बेसिकली सेंसेशन में आपको जो दो सेंसेशन ब्रॉडली पढ़ने हैं वो है विजुअल सेंसेशन एंड ऑडिटरी। सो फर्स्ट डिस्कस विद द विजुअल सेंसेशन। ओके, ठीक है, तो चलिए विजुअल सेंसेशन को पढ़ें डिटेल में। विजुअल सेंसेशन ऑब्वियसली जो सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है तो वो होता है आई। इन विजुअल सेंसेशन द ऑर्गन विच इज डोमिनेंट इज आई। सो हियर यू हैव टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आई का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। चलिए, आई के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। आई का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। इफ यू सी द डायग्राम, तो आई के स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। You have to do more and more practice. It is something I have made it very roughly. ठीक है, बहुत ही रफली मैंने ये बनाया है। ठीक है, आउटर से ये इस तरीके से कुछ लुक करता है। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन सी इन योर बुक। नाउ इफ यू रेड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, so eye is also divided into three parts: outer layer, middle and third is inner। आई का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है: आउटर, मिडिल और इनर। outer layer is the eye where you will find out the cornea, pupils, ठीक है। मिडिल ईयर में और आप जाएंगे तो आपको कुछ चैम्बर्स मिलेंगे, कॉर्निया
और पिपल्स ये सब आपको आउटर ईयर आई में मिलेंगे, सॉरी आई एम सेइंग ईयर, आई में मिलेंगे, ठीक है। कॉर्निया एकदम आउटर, ये आप देख रहे हो जो, इट इज़ इन आउटर लेयर। अंदर जाएंगे तो यू डॉट अ लेंस आप मिलेगा आपको मिडिल ईयर में। चैम्बर होंगे, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एंड देन इन द इनर लेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई विच इज़ द इनर लेयर एंड इट कंटेन द रेटिना। जो रेटिना है यही तो मेन सबसे रोल होता है आई में। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी एबल टू सी, आप देख पाते हो, यू विल बी एबल। बट रेटिना पे जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज पड़ती है। Then when the information goes to the optic nerve, then it again you can say that invert it into the proper image which is the real, and then you will be able to see the clear picture. So this is the process. Okay, so let's discuss about some of the parts के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, आउटर लेयर, मिडिल और इनर। क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं? कॉर्निया होता है इसमें, कॉर्निया, पिपल, इरिस, सिलैरी मसल्स, फोबिया, रेटिना, blind spot, optic nerve, aqueous humor, vitreous humor, aqueous humor, vitreous humor. So these are the structure of the eye, or you can say that these are the parts of the eye. Please note it down, these play a very important role in your eye. Okay, one more is left, it is the lens. तो ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके आई के। कॉर्निया होता है आपके आई में, पिपल होता है, इरिस होता है, सिलैरी मसल्स होता है, लेंस होता है, फोबिया, रेटिना, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। तो इन सभी को मिला के आपका आई का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कॉर्निया एकदम आउटर लेयर होती है आई की। कॉर्निया के जस्ट इनसाइड पिपल होता है। सिलैरी मसल्स पिपल के जस्ट पास होता है, ये एडजस्टमेंट करते हैं so that you will be able to see properly. आई को कंपेयर भी किया गया है with the camera. Eye is compared with the camera, just like camera captured the pictures, eye also captured the pictures. In camera there is a lens, in eye also there is a lens. Lens होता है, ठीक है। Then एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो होते हैं वो मिडिल पार्ट में होते हैं, और ये जो होते हैं ये आप कह सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर रेटिना से पहले होता है, विट्रस ह्यूमर रेटिना के बाद होता है। यू जस्ट क्लियर इट, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इज समथिंग लाइक वाइट, सॉरी वाटर लाइक सब्सटेंस, पानी होता है, एक्वा से बना है, एक्वस वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इन दोनों का ही काम होता है कि आई के पोस्चर को मेंटेन करके रखना और आई को एक फोकस करके रखना, इन दोनों का ही ये काम है, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द आई इज द रेटिना, क्योंकि यहाँ पे भी इमेज बनता है। फोबिया इज ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट, इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। येलो स्पॉट मतलब वो स्पॉट होता है जहाँ पे मैक्सिमम एक्यूटी रहती है या मैक्सिमम विजन रहता है। तो फोबिया वो पार्ट है रेटिना का जहाँ पे मैक्सिमम ये इक्विटी रहती है, और ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है आई का जहाँ पे बहुत ही लो विजन रहता है या लो एक्विटी रहती है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो रेटिना के बाद एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अंडरस्टूड। सो मैक्सिमम विजुअल एक्टिविटी जो एरिया होता है वो होता है येलो स्पॉट, और लेस विजुअल एक्टिविटी का जो एरिया होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है।
Now I hope you all have written it down. So coming to the retina. Retina is divided into two parts. रेटिना जो है आपकी आई में होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज द रॉड्स एंड सेकेंड इज द कोन्स. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स जो होता है वो नाइट विजन के लिए होता है. नाइट विजन. आप इसमें डिफरेंशिएशन लिख लो. आई एम मेकिंग अ चार्ट. It will be better for you. Rods, cones. So rod जो होता है सबसे पहला पॉइंट नाइट विजन. It is for night vision. Cone is for daylight vision. ये नाइट विजन के लिए, डे लाइट विजन के लिए. ठीक है. ये कलरलेस होता है. ये कलरफुल होता है. सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर. कलरलेस यानी अक्रोमेटिक एंड कलरफुल यानी क्रोमेटिक. क्रोमैटिक एंड अक्रोमैटिक. ठीक है. नाइट विजन, डे लाइट विजन. रॉड्स में रोडॉप्सिन होता है, केमिकल सब्सटेंस. रोडॉप्सिन एक फोटो केमिकल सब्सटेंस है. ठीक है. RHO रोडॉप्सिन. और इसमें एडॉप्सिन होता है. ठीक है. इसमें रोडॉप्सिन होता है यानी एक फोटोकेमिकल सब्सटेंस होता है और इसमें एडॉप्सिन होता है. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रॉड्स एंड कोन. दिस इज फॉर नाइट विजन, दिस इज फॉर डे लाइट विजन. यानी ये रॉड्स जो है वो नाइट में वर्क करते हैं, डार्क में वर्क करते हैं. आप ऐसे देख सकते हो, वर्क इन डार्क. डार्क एडेप्टेशन में ये बहुत वर्क करते हैं, डार्क एडेप्टेशन. और कोन्स जो हैं वो डे लाइट है, तो यानी लाइट एडेप्टेशन में वर्क करते हैं. दिस इज अनदर पॉइंट. दिस डिफरेंशिएशन विल हेल्प यू अ लॉट इन राइटिंग डाउन इन योर पेपर. सो बिकॉज आई गेट यू 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आर देयर. ठीक है. सो रॉड्स जो होते हैं वो नाइट विजन, रात में मतलब फंक्शन करते हैं. टोन्स डे लाइट में. ये कलरलेस होता है, ये कलरफुल, ये अक्रोमेटिक, क्रोमेटिक. रोडॉप्सिन फोटोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, ये एडॉप्सिन करता है. यूजफुल फॉर डार्क अडेप्टेशन. सो दैट इज़ वाई इन द पर्सन, अगर कोई पर्सन है जिनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें ये केमिकल रिलीज नहीं हो पाता. तो नाइट विजन में प्रॉब्लम होती है, यानी डार्क में यानी अंधेरे में अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है. उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता. इज इट क्लियर? सो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे एवरीवन और टेक अ स्क्रीनशॉट. So these are the rods and cones are the two important parts of the retina. So almost the structure of the eye we had clear to you. Okay. I have rubbed it with the hope कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा. ठीक है. So structure of the eye, children, I discussed with you. Now what is left is the working of the eye. आई कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है. और जैसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे वी विल मूव टू व्हाट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर. ऑडिटरी सेंसेशन. द नेक्स्ट सेंसेशन विच यू हैव टू रीड अबाउट इट इज ऑडिटरी सेंसेशन. ओके. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको लगता है कि आपको ये डाउट हो रखा है, so you will definitely discuss in the classroom. Okay. And you see the video, then whatever the things were there we will going to discuss it, because this is the pattern. Because you have to see, then we will discuss the same thing in the classroom.
Okay, thank you so much children.